بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 2 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب لا رہے ہیں تجلیات، مصنف خواجہ شمس الدین عظیمی، آواز حنا احمد۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے موبائل نمبر 0300-291-9600 یا واٹس ایپ نمبر 0333-249-5373 پر رابطہ کریں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب آپ کے لیے علی رضا صاحب نے اسپانسر کی ہے۔ اس کتاب کے ٹوٹل صفحات 233 ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 2 صفحہ نمبر 23 سے۔ اگر حجم زیادہ ہوتا تو کشش ثقل کی زیادتی کی وجہ سے ہوا کاربن ڈائی آکسائڈ خلا میں منتشر ہونے کی بجائے زمین کی سطح سے آ چمٹتی اور زیرو ہر مخلوق کا سانس لینا دشوار ہو جاتا، اور اگر کرۂ ارض کا حجم موجودہ متعین مقداروں سے کم ہوتا تو کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے ہوا آکسیجن خلا میں اڑ جاتی اور تمام زیرو فنا کے گھاٹ اتر جاتے۔ یہ بات مشاہدے میں آ جاتی ہے کہ چاند اور سورج سے زمین کا فاصلہ بھی معین مقداروں پر قائم ہے۔ اگر زمین سورج سے معین مقداروں کی نسبت زیادہ دور ہوتی تو تمام کرۂ یکس بستہ ہو جاتا، برف کی دبی سلوں کے علاوہ زمین پر کسی چیز کا وجود نہ ہوتا، اور اگر یہ فاصلہ معین مقداروں سے کم ہوتا تو سورج کی تپش فصلوں کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ چاند اور زمین کے فاصلے میں اگر معین مقداریں ٹوٹ جائیں تو مد و جزر کی لہریں اتنی بلند ہو جائیں گی کہ ساری زمین سمندر کی طوفانی لہروں میں غرق ہو جائے گی۔ کائنات میں تفکر کرنے والا بندہ اور روحانی سائنس کا طالب علم اپنے مشاہدے اور تجزیہ اینالائزس کی بنا پر اس مقصد سے آشنا ہوتا ہے کہ کائنات میں عناصر کی ترتیب، ہم آہنگی، نظم، افادیت و مقصدیت کو چشم شعور کی کار فرمائی نہیں ہے۔ کوئی طاقت ہے، کوئی ہستی ہے جس کے حکم پر ازل تا ابد نظام حیات و کائنات قائم ہے، اور اس سارے نظام میں تمام عناصر، تمام مناظر اور سب مظاہر معین مقداروں پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے سے ہم آہنگ اور ہم رشتہ ہیں۔ پاک اور بلند مرتبہ ہے وہ ذات جس نے تخلیق کیا معین مقداروں کے ساتھ اور ہدایت بخشی۔ الاعلیٰ دولت کی محبت بت پرستی ہے۔ ایسی کتنی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے خدا اور انبیاء علیہ السلام کی ہدایت کو پس پش ڈال دیا، چنانچہ ہم نے ان کا شدید محاسبہ کیا اور انہیں المناک عذاب دیا۔ یہ لوگ بدکاری کے نتائج سے نہ بچ سکے اور ان کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ ابھی ایک اور دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ اے عقل والو، سمجھ بوجھ سے کام لو۔ سورہ تحریم۔ جو قوم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہے اور اللہ کی پرستش کی بجائے دولت پرستی پر مبتلا ہو جاتی ہے، اللہ ایسی قوم کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ روئے زمین پر اس کی شہادتیں موجود ہیں۔ بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک اور محلات کے مکین نظر میں آئے، لیکن ان کے عالیشان محلات آج کھنڈرات کی شکل میں زمین پر جگہ جگہ موجود ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں گھوم پھر کر نہیں دیکھتے کہ پہلی اقوام کا کیا انجام ہوا؟ وہ لوگ قوت اور تہذیب و تمدن میں ان سے برتر تھے، لیکن اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی سزا میں پکڑ لیا اور انہیں کوئی نہیں بچا سکا۔ سورہ مومن۔ چھوٹی غلطیوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور جب تک اللہ کے بتائے ہوئے نظام میں خلل واقع نہ ہو قانون قدرت لغزشوں کو نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب افراد کے غلط طرز عمل سے خدا کی خدائی میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے اور اچھے لوگ بھی بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں تو خدا کا قاہرانہ نظام متحرک ہو جاتا ہے اور قوم دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ اللہ کا قانون ایسے افراد سے اقتدار چھین لیتا ہے اور یہ افراد یا قوم غلام بن جاتی ہے، اس لیے کہ قوم نے خود دولت کا غلام بن کر اپنے لیے عارضی
और मिट जाने वाली चीज की गुलामी पसंद कर ली थी। आज का हमारा दौर बिलाशुबा दौलत परस्ती का दौर है। कौन कह सकता है कि दौलत परस्ती और बुत परस्ती दो अलग अलग तर्ज अमल हैं? पत्थरों को पूजना या सोने को पूजना एक ही बात है। बुत भी अल्लाह की मखलूक पत्थरों और मिट्टी से तख्लीक किए जाते हैं और सोना चांदी भी मिट्टी की बदली हुई एक शक्ल का नाम है। सोने चांदी और जवाहरात की मोहब्बत ने कौम को इस हद तक अंधा कर दिया है कि शराफत और खानदान का मयार ही दौलत बन गया है। हवसे ज़र का आलम ये है कि हमारी तमाम इंसानी कदरें पामाल हो चुकी हैं। खानदानी अखलाक, इस्लाफ की निजाबत, कौमी रिवायात अब मलबे का ढेर बन गई हैं। मौत के बाद जिंदगी से यकीन उठ गया है। सारी कौम बाबरिया ऐश कोश को आलम दोबारा नेस्त की तफसीर बन गई है। रूहानी कदरों को ज़िबा करके अखलाकी बुराइयों को जन्म दिया जा रहा है। अल्लाह के इस फरमान की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो और आपस में तफर्रुका ना डालो। अल्लाह के बंदे जब इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो कौम कानों में रुई और मुंह में घुंघियां डालकर बैठ जाती है। कौम के नेक बावतन अफराद आंसू बहाते हैं और शैतान अपनी कामरानी पर कहकहे लगाता है। हमने हर एक को उसके आमाल के मुताबिक सजा दी। बास पर पत्थरों का मीना बरसाया, किसी को कड़क ने दबोच लिया, कुछ को जमीन ने निगल लिया और कुछ को समंदरों की लहरों ने तह आप कर दिया। हमने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि ये खुद अपनी तबाही के जिम्मेदार हैं। सूरह अनकबूत। आज के इंसान ने मालो ज़र को जिंदगी का मकसद बना लिया है और इस दौलत से बड़ी बड़ी हवेलियां और महलात तामीर करना ही फख्र का बाइस बन गया है। लेकिन हम नहीं सोचते कि आज से पहले भी कौमों ने खूबसूरत महलात को अपनी महराज समझ लिया था। ऐसे ऐसे लोग हो गुजरे हैं जिनकी फिक्र तदबीर से, जुल्म सितम से और दुनियावी जाहो चश्म से, किब्रो नखूस से दुनिया दहल जाती थी। लेकिन जब कुदरत की गिरफ्त उनके ऊपर मजबूत हो गई और उनके ऊपर से अफू व दरगुजर का साया उठ गया तो ये सब मिट्टी में मिल गए। आज हम मिट्टी के इन्हीं जर्रात को पैरों में रोंदते फिरते हैं। वो लोग कितने ही जन्नतें, चश्मे, खेतियां और बुलंद मनाजिल, नेमतें जिनसे फायदा उठाते थे छोड़कर चले गए। अल कुरान। अल्लाह के कानून से इनहराफ की हजारों सजाएं हमारे सामने हैं। नए नए मूजी अमरात की यदगार है। सब कुछ होते हुए हर शख्स अफलास के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। औलाद नालायक है या वालिदैन नालायक करार दिए जा रहे हैं। कौम बसारत और बसीरत से महरूम हो रही है। दिमागी आर्जे आज जितने आम हैं उतने कभी न थे। मौत एक खेल तमाशा बन गई है। जरा जोर से दिल धड़का और आदमी लहद में उतर गया। अदम तहफ्फुज का ये आलम है कि पत्ता भी हिले तो दिल सीने की दीवारों से बाहर आ जाना चाहता है। घर में मियाँ बीवी को की तू तकार से नौजवान नस्ल शादी के बंधन को बोझ समझने लगी है। वसाइल के अंबार होने के बावजूद रोज ही तंग हो गई है। जो लोग मेरे अहकाम को भूल जाएंगे हम यहाँ उनकी रोजी तंग कर देंगे और कयामत में उन्हें अंधा बनाकर उठाएंगे। सूरह तौहा। तरक्की का महरम गैर मुस्लिम। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गुजर बैतुल मुक़द्दस के करीब हुआ तो तबाह और बर्बाद बस्ती को देखकर दिल में ख्याल आया, क्या ये वीरान और तबाह हाल बस्ती दोबारा आबाद हो सकती है? क्या इस बस्ती में आबाद इंसान जिनका अब नामो निशान बाकी नहीं रहा दोबारा इस बस्ती को रौनक बख्शेंगे? ये सोचते सोचते जरा देर के लिए जमीन पर बैठ पीठ लगाई तो नींद आ गई और 100 साल तक सोते रहे। 100 साल या 1 सदी तक सोने के बाद नींद से बेदार हुए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने गधे पर गौर कर जिसकी हड्डियां भी राख का ढेर बन गई हैं और देख हम किस तरह इन्हें तरतीब देकर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने मुर्दा गधे को जिंदा होते देखा तो पुकार उठे, मुझे ऐसी कुदरत का इल्म अब हासिल हुआ है। सूरह बकरा। कायनात का इल्म जब हासिल हो जाता है
तो इंसान के अंदर ईमान और यकीन की एक दुनिया रोशन हो जाती है और नूर से दिल मुनव्वर हो जाता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, जब उनके सामने आयात इलाही की तफसीर पेश की जाती है तो उनके सीने मुनव्वर हो जाते हैं। सूरह अनफाल। तारीकियों से निकलने, हिज्नो मलाल की जिंदगी से आजाद होने, अक़वाम आलम में मुक़्तदिर होने, दिलो दिमाग को अनवार इलाहिया का नशीमन बनाने और निज़ाम रबूबियत और खालिकियत को समझने के लिए सहीफ़े कायनात के जर्रे जर्रे का मुताला अम्र लाजिम है। सहीफ़े कायनात के एक एक जुज़ू की तशरीह कुरान पाक में मौजूद है। कुरान वो सहीफ़ा आसमानी है जो हर जमाने और हर कौम के लिए जिंदगी का पैगाम है। कुरान जहाँ तस्खीर कायनात के फार्मूलों की दस्तावेज है, वहाँ इंसानी जिंदगी के लिए एक दस्तूर है। इस दस्तावेज में ऐसे रास्तों की निशानदही की गई है जिन पर चलकर जिल्लत इज्जत में, शिकस्त फतह में, कमजोरी कुव्वत में, बदहाली खुशहाली में और इंतशार वहदत में तब्दील हो जाता है। अल्लाह का कानून हमागीर है, सबके लिए है। जिस तरह हर आदमी मुतय्यन फार्मूले से कोई चीज बना लेता है, इसी तरह सहीफ़ा हिदायत में गौर व फिक्र करके अपने लिए एक मंजिल मुतय्यन कर लेता है। हाय रे अफसोस, मुसलमान के अंदर से गौर व फिक्र का पैटर्न निकल गया है, सोख्त हो गया है। मुसलमान को ज़हनी, शऊरी, फिक्री और असासी बुनियाद पर ऐसी राह पर चलने पर मजबूर कर दिया गया है जहाँ फिक्र तदबीर का दम घुट जाता है और एक मखसूस तबका ने ना हमवार, नाकाम और नामुराद रास्ते पर मुसलमान को इसलिए डाल दिया है कि इस तबके की इजारादारी कायम रहे। सहीफ़ा आसमानी हमें जिंदगी जमीन के अंदर भरे हुए खजानों और समंदर के अंदर मौजूद दौलत से फायदा उठाने की तरगीब देता है, हुक्म देता है और पहाड़ों के जिगर चाक करके उनके ज़खायर से फायदा उठाने का दर्ज देता है। मगर हमने अपने दिलों को जंग आलूद कर लिया है, कान बंद कर लिए हैं और आंखों पर दबीज पर्दे डाल दिए हैं और इस तरह वो कौम जो तस्खीर कायनात के फार्मूलों की अमीन बनी थी, तही दस्त और मफलूकुल हाल बन गई है। गैर मुस्लिम अल्लाह की मखलूक ने जब इस सहीफे के अंदर बयान करदा उसूलों, कायदों, मिकदारों और फार्मूलों पर गौर किया तो वो इज्जतदार बन गए, इल्म हुनर के मैदान में मुमताज मकाम हासिल कर लिया। आज वो हवाओं में महवे परवाज हैं। उनके जहाज और उनकी कश्तियों ने समंदर के सीने को छलनी कर दिया है। ऐसा लगता है कि हवाओं पर उनकी हुक्मरानी है, दरिया और समंदर उसके जेरे असर हैं। जमीन के अंदर खजाने उनके ताबे हैं। हजारों मील दूर बसने वालों की आवाज आने वाहिद में सुनना अब रोजमर्रा का मामूल बन चुका है। ये सब इसलिए है कि गैर मुस्लिम अक़वाम ने सहीफ़े कायनात पर गौर करना और कायनात पर मौजूद हर शय की तख्लीक का राज जानना अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, क्योंकि वो तख्लीकी इल्म से बेगाना नहीं है। इसलिए तरक्की उनकी बांदी बनकर रह गई है। ये कैसा अलमिया है कि हर तरक्की का मखज़न गैर मुस्लिम है और हर बर्बादी, जिल्लत और रुसवाई मुसलमान का इम्तियाजी निशान है। क्यों? इसलिए कि इस्लाम के नाम लेवाओं और मुस्लिम कौम के दानिश्वरों ने शऊर आगही और फिक्र पर अपनी मसलहतों के पहरे बिठा दिए हैं। अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है, ए रसूल, मुसलमानों को हुक्म दे कि वो जमीन के मुख्तलिफ शवाहिद का मुआयना करके आगाज आफरीनिश का खोज लगाएं। सूरह अनकबूत। क्या ये लोग गौर नहीं करते कि ऊंट की तख्लीक कैसे हुई, आसमान क्यों कर मुर्तफे किया गया, पहाड़ कैसे नस्ब किए गए और जमीन क्यों कर बिछ गई। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमाले इलाही की ईमान अफरोज दास्तान इनको सुना कि ये तेरा फर्ज है। सूरह गाशिया। कफन दफन। हमारे एक दोस्त हाजी साहब पुरमुर्दा दिल, नमनाक आंखों के साथ सड़क पर तेज कदमों से चल रहे थे। मैंने सलाम किया और पुरमुर्दा दिली और घबराहट के साथ तेज रफ्तारी की वजह पूछी। बोले, मेरे दोस्त हाजी रमजान का इंतकाल हो गया है।
میں نے ताज़ियत की और कहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये मरहला हर शख्स के साथ पेश आता है। आप और मैं भी उम्र के इस हिस्से में हैं जहां जिंदगी के धारे मौत की तरफ बहने लगते हैं। आज हाजी रमजान साहब ने अपने पसमानदगान को दादे मरफाकत दे गए। कल यही सब कुछ हम करेंगे। ये एक ऐसा मुसलसल और मुतवातिर अमल है जो यौम आफरीन से जारी है और यौम क़यामत तक जारी रहेगा। हाजी साहब बहुत खूब और मरंजा मिजाज के इंसान थे। मेरी तकरीर पर आमेज गुफ्तगू सुनकर बोले, बात ये नहीं है कि हाजी रमजान क्यों मरा, बात ये है कि इसके वरसा सफरे आखिरत में इसके लिए दीवार बन गए हैं। हाजी रमजान की 4 लड़कियां और 1 लड़का है। मालो असबाब इतना है कि सही मानों में उसका अंदाजा भी नहीं होता। मौत की खबर सुनकर चारों लड़कियां, चारों दामाद और दूसरे अजीज अकरबा तजहीज़ तकफीन के लिए कोठी में जमा हो गए। उस वक्त मसला ये दरपेश है कि जायदाद की तकसीम हो जाए तब जनाजा उठेगा। मैं उनका दोस्त हूँ। उम्र मेरी इतनी है कि भौएं भी सफेद हो गई हैं। मैंने बहुत चाहा कि जायदाद की तकसीम का मामला कफन दफन के बाद तय हो जाए, मगर साहब वहाँ तो कोई किसी की सुनना ही नहीं है। अब हो यह रहा है कि दोनों तरफ के वकील ड्राइंग रूम में बैठे हैं और धन दौलत के साथ साथ घर में मौजूद जेवरात, जवाहरात और दूसरे असासों की फहरिस्त तैयार हो रही है। सब लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि जब तक भाई बहनों को बाप का छोड़ा हुआ असासा तकसीम ना कर दे, उस वक्त तक जनाजा नहीं उठेगा। इस नफ्सा नफसी में हालात ये हैं कि हाजी रमजान की लाश पानी बनकर बहने लगी है। बर्फ की सिल्लियों से कमरा भरा हुआ है। एक तरफ बर्फ का जिगर पानी बनकर बह रहा है और दूसरी तरफ हाजी रमजान के जिस्म के अंदर की चिकनाइयां सड़ान बनकर पानी बन रही हैं। हाजी रमजान मेरा दोस्त है। जाहिर है कोई भी दोस्त किसी दोस्त की इतनी ज्यादा बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत गमगीन हूँ, इतना उदास हूँ कि लगता है कि अक्लो शऊर ने मुझसे अपना नाता तोड़ लिया है। हाजी साहब का क्या बना, कब उनका जनाजा घर से रुखसत हुआ, इसके बारे में खोज लगाने की हिम्मत नहीं हुई। ये वाकया सुनने के बाद मेरे दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई। मैंने जब इस भयानक सूरत हाल पर गौर किया तो कुरान पाक की एक आयत जहन पर गौर करने लगी, और वो लोग जो सोना चांदी जमा करते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर डालते, उनके लिए अजाब अलीम की बशारत है। कुरान पाक की इस आयत का मफहूम जहन में आया तो दिमाग के अंदर मौजूद तफक्कुर का एक दरवाजा खुला और यकीन महकम ये बना कि दौलत के अंबार जमा करने के नताइज अलमनाक होते हैं। ऐसे लोग अमूमन अपनी सेहत का जनाजा निकाल देते हैं। दिल कमजोर, जिगर नाकारा, ज़ियाबितस, फशारे खून, जिनसी बीमारियां, गुर्दों में रेत, फेफड़ों में जख्म, पित्ते में पथरी, हाथों में पेशिश के जरासीम और ना जाने किन मुसीबतों में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों की नींद उड़ जाती है, सुकून रूठ जाता है और दूसरों की मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं। दोस्तों में, रिश्तेदारों में और अवाम में उनका कोई एहतराम नहीं होता। लोग अगर मोहब्बत का इजहार करते हैं तो वो दरअसल उनकी जात का एहतराम नहीं होता, उनके पास जो आनी जानी दौलत है उसका एहतराम करते हैं। देखा गया है कि उनका खात्मा इबरतनाक होता है। पसमानदगान में औलाद पर जवानी का भूत सवार हो जाता है तो वो मादर पितर आजाद होकर तालीम को ताक़े नसिया में सजाकर हुस्न आबाद की तरफ निकल जाते हैं। ये भी होता है कि माँ बाप जिंदा होते हैं और माँ बाप के बुढ़ापे का वाहिद सहारा बरखुरदार के 2 बड़े ठिकाने बन जाते हैं। ऐसे 2 बड़े ठिकाने जहाँ से बेशुमार बुराइयों के धारे बहते हैं। माँ बाप समझाते हैं, मिन्नत करते हैं, खून के आंसू रोते हैं, पूरी पूरी रात बेटे के इंतजार में टहल टहल कर गुजारते हैं, लेकिन बेटे पर कोई असर नहीं होता। कब दुनिया का कोई एक फर्द भी कह सकता है कि इस तरह की औलाद और ऐसी जिंदगी दौलत में मुसर्रत और शादमानी का पैगाम दे सकती है? नहीं, हरगिज नहीं। ऐसी दौलत
और ऐसी दौलत बिलाशुबा एक अजाब है। दौलत के दो रुख हैं। दौलत का एक रुख तो ये है कि इंसान को दौलत अजाब बनकर जहन्नम बनकर खाकसर कर देती है। दौलत का दूसरा रूप ये है कि दिलो दिमाग रंगीनियों, रानाइयों, कनात, मुसर्रत और शादमानियों से मामूर हो जाता है। इस रूप का दौलतमंद बेवाओं और यतीमों के लिए पनाहगाहें तामीर करता है। सैकड़ों बिपताओं और मुसीबतों से दूसरों के लिए निजात का जरिया बन जाता है और वो हैवान महज बनकर जिंदा नहीं रहता, दिल की दुनिया में जगमग रोशन कुमकुमे सजाकर दिल की दुनिया को आबाद कर लेता है। वो अकल के लिहाज से अहमक और आंखों के लिहाज से अंधा नहीं होता, हैवानियत से दूर होता है और इस आदत को अपना लेता है जो आदत अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़िक की है। हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे मुसलमानों पर हैरत है कि हर शख्स दौलतमंद बनना चाहता है, लेकिन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कोई नहीं बनना चाहता। उनके लिए सूरह तौबा में वईद है। तर्जुमा, तुम्हें उनके मालो औलाद पर हैरत नहीं होनी चाहिए। हमारा इरादा ये है कि इस दुनिया में मालदार औलाद को उनके लिए एक मुस्तकिल अजाब बना दे और वो इसी काफिराना जिंदगी के साथ इस जहान से रुखसत हो जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक हमें बताती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दौलत जमा नहीं की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम का अमल ये था कि ईरान और रोम की दौलत के अंबार उनके सामने थे, लेकिन ये कुदसी नफ्स हजरात 25 लाख मुरब्बा मील कलमों पर हुकूमत करने के बावजूद मजदूरी करके बच्चों का पेट पालते थे और मजदूरी से जो कुछ बचता था वो खैरात कर देते थे। दुनिया में दौलत से ज्यादा बेवफा कोई चीज नहीं है। दौलत ने कभी किसी के साथ वफा नहीं की। दौलत हरजाई है। दौलत एक ऐसा बुज़दिलाना तशख्खुस है कि जो दौलत को पूछता है दौलत उसको तबाह व बर्बाद कर देती है, लेकिन जो बंदा दिल दौलत की तहकीर करता है उस पर सर पर रखने के बजाय दौलत को पैरों की खाक समझता है, दौलत उसके आगे पीछे दौड़ती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हमने हर चीज को मुअय्यन मिक़दारों के साथ तख्लीक किया है। ये मुअय्यन मिक़दारें ही तशख्खुस बनाती हैं। ये मुअय्यन मिक़दारें ही बावजूद ये कि एक इंसान दूसरे इंसान में अपने इरादे और इख्तियार से जज्ब हो जाता है, लेकिन सेंटीमीटर के हजारवें हिस्से के बराबर खला ना होने के बावजूद दोनों इंसान अलग अलग रहते हैं। कानून ये बना कि मिक़दारों में तय्युन ही इनफरादियत और तशख्खुस कायम करता है। कोई इंसान इस तख्लीकी कानून को तोड़ नहीं सकता। जिस तरह एक इंसान इदराक रखता है, इसी तरह दौलत भी इदराक से खाली नहीं है। जब कोई इंसान दौलत के तशख्खुस से फरार इख्तियार करता है तो मिक़दारों के कानून के मुताबिक तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए दौलत उसके पीछे भागती है, और जब कोई इंसान दौलत के पीछे भागता है तो दौलत उसके साथ बेवफाई करती है और अजाब बनकर उसके ऊपर मुसल्लत हो जाती है। आग का समंदर। खुदा इस जहन्नम का मालिक है जिसमें आग के समंदर खौल रहे हैं। जहन्नम वो मकाम है जहाँ सांपों, अजदहों और बिच्छुओं का बसेरा है। इस गरम तपती आतिशफशाबाजी में ग़िज़ा थोहर है। आंतों, रगों और शरियानों की सैराबी के लिए जो मशरूब है वो पीप है। ए लोगों, खुदा से डरो। खुदा तुम्हें ऐसी सजा देगा कि इस सजा के तसव्वुर से ही जिस्म पानी और हड्डियां राख बन जाएंगी। एक अजदहा तुम्हारे ऊपर पंजे मारेगा, तुम जहन्नम की तपती जमीन में अंदर ही अंदर धंसते चले जाओगे। वो अजदहा फिर तुम्हें निकाल लाएगा, फिर तुम्हें जमीन की इंतहाई गहराई में दफन कर देगा। पानी ऐसा गर्म मिलेगा कि होंठ उबल कर लटक पड़ेंगे। ये वो अल्फाज हैं जो हमारे कानों में पिघलते शीशे की तरह उंडेले जाते हैं। एक कमजोर और नातवा इंसान ऐसे खौफनाक खुदा से डर डर कर खुदा को एक खौफनाक हस्ती समझने लगता है। खौफनाक खुदा का तसव्वुर उसे खौफ और दहशत के एक ऐसे सहरा में फेंक देता है
जहाँ खुदा का एक डरावना वजूद बन जाता है। हमारे दानिश्वर, हमारे गाइड, मेहराब और मेंबर से हमें ये क्यों नहीं बताते कि अल्लाह वो है जो शिकम मादर में हमें 9 माह तक ग़िज़ा फराहम करके हमारी हर तरह नशोनुमा करता है। 1000-2000 मील चलकर घटाएं हमारे खुश जमीन पर पानी बरसाती हैं। हसीन और रंगीन बहारें जमीन को दुल्हन की तरह सजाती हैं। आसमान पर जगमग करती कंदीलें हमारी नजर को नूर और दिमाग को सुरूर बख्शती हैं। खुदा वो है जिसने रंग रंग फूल जमीन की कोख से पैदा करके इंसान के शऊर में रंगीनी पैदा कर दी है। कतार दर कतार दरख्त फलों से लदे हुए अशजार हमारे मुंतजिर हैं कि हम उन्हें खिदमत का मौका दें। दरख्त के पत्ते जब हवाओं के दोष पर झूलते हैं तो दरअसल इंसान की तस्कीन रूह के लिए गीत गाते हैं। हवाएं साज बजाती हैं, टहनियां रक्स करती हैं और खुद कुदरत वजद में आ जाती है। बरसाती शर्मो हया के लिबादे में अर्क आलूद पेशानी से मस्तियां लुटाती हैं। बरसात के अंधेरों में, बरसात की रोशनी में नूर और कैफ व सुरूर होता है। सूरज बरसात की लजाजत और हया के पसीने से आंखें मूंद लेता है। धूप जिसका काम झुलसा देना है, नर्म और ठंडी हो जाती है और फिजा धुल जाती है। दरख्त नया लिबास ज़ेबे तन कर लेते हैं। वो खुदा जिसने जिंदगी को कायम रखने के लिए इतने वसाइल मुहैया कर दिए हैं कि इंसान तवाज़ुन और वसाइल का शुमार भी नहीं कर सकता। जब तू थक जाता है तो रात तुझे थपक थपक कर नींद की लोरियां सुनाकर सुला देती है, और जब सोता रहता है तो दिन आहिस्ता खुराम तेरे गुर्द धाद आवाज के साथ मध्यम दस्तक देकर तुझे बेदार कर देता है। ऐ हमारे दानिश्वर, हमारे गाइड, तुम इस खुदा का तज़किरा क्यों नहीं करते जिसने हमारे अंदर एक मशीन नस्ब कर दी है, जिसका हर पुर्जा हमारे इख्तियार और हमारे इरादे के बगैर चल रहा है। दिल सारे जिस्म को शादाब रखने के लिए खून दौड़ा रहा है। दिमाग आसाबी निजाम को बहाल रखने के लिए तवातुर के साथ जिंदगी की इत्तला दे रहा है। आते ग़िज़ा को जुज़े बदम बना रही हैं, आंखें मनाजिर कुदरत की वीडियो फिल्म बना रही हैं। ऐ हमारे दानिश्वरों, हमारे रहनुमाओं, तुम क्यों सिर्फ ऐसे खुदा का तज़किरा करते हो कि इंसान जिस खुदा को खौफनाक हस्ती, डरावनी जात समझकर रात दिन डरता रहे, लरसता रहे, जिस्म का हर अज़ू कांपता रहे। ये कौन नहीं जानता कि डर और खौफ दूरी और जुदाई का अस्कीरी नुस्खा है। ये कौन नहीं तस्लीम करेगा कि डर घुटन है, डर इज़्तिराब है, डर बेचैनी है, डर और खौफनाकी दो दिलों में जुदाई की एक दीवार है। ऐ मेरे बुजुर्गों, मेरे इस्लाफ की नयाबत के दावेदारों, अगर तुम्हें ये यकीन हो जाए कि तुम्हारा बाप एक खौफनाक हस्ती है और वो तुम्हारे वजूद को जलाकर खाकस्तर कर देगा, तो क्या तुम उसके करीब जाओगे? दुनिया का कानून है कि अमन पसंद शहरियों की हिफाजत की जाती है। हाकिम अमन पसंद शहरियों को अच्छा ही नहीं समझता, बल्कि उनसे मोहब्बत भी करता है, उनकी सेहत, उनकी जरूरियात का इंतजाम करता है। ऐ मेरे दानिश्वरों, तुम अपने पीछे चलने वाली भीड़ को ये क्यों नहीं बताते कि कानून की पासदारी करो। हाकिम अपने फिदाकारों और अपनी अताअत करने वालों से मोहब्बत करता है। अगर तुम अल्लाह के फैलाए हुए वसाइल को सब्र शुक्र के साथ खुश होकर इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह खुश होगा। इसलिए खुश होगा कि ये सारे वसाइल तुम्हारे ही लिए तख्लीक किए गए हैं। आज का इंसान अगर अच्छा लिबास पहनना तर्क कर दे और मोटा झूठा खद्दर का लिबास पहनने लगे तो हजारों फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। फैक्ट्रियां बंद हो जाने से लाखों इंसान भूख से मर जाएंगे। आसाइश और आराम के वसाइल से फायदा उठाना मंसूख कर दिया जाएगा तो अल्लाह की मखलूक तहीदस्त और मफलूकुल हाल हो जाएगी। शुक्र का मफहूम ये है कि अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल किया जाए, और सबर ये है कि बंदा राजी बा रजा रहे। और जब बंदे शुक्र का कुफरान करते हैं और सबर से खुद को आरास्ता नहीं करते तो उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत जागजी हो जाती है। इस दुनिया की मोहब्बत जो आर्जी और फानी है,
किताब तजल्लियात का पार्ट 2 सफ़ा नंबर 37 पर इख्तिताम पजीर होता है। बकिया किताब पार्ट नंबर 3 में सफ़ा नंबर 37 से समाअत फरमाइए।